Hi kids, so I hope you have gone through my first video of the chapter quality. It's the fifth chapter of your honeycomb standard 7th. So I'll be again starting from where I left. That would be once. This page 74, and from here I will be starting again. Once only, I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots brought in an emergency at some large firm. So the writer was wearing some boots which he had not brought from Mr. Gessler, जो उन्होंने कहीं और से खरीदे थे और बहुत जल्दी में ख़रीदे थे. It was from a large firm, means a large shop or a company. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. He took the order. जो राइटर ने उनको बोला था कि मेरे लिए शूज़ बना दो, उन्होंने ऑर्डर ले लिया, लेकिन पूरा टाइम वो राइटर के पैर की तरफ देखते रहे कि इन्होंने जो शूज़ पहन रखे हैं वो कितने बुरी क्वालिटी के हैं. At last he said, those are not my boots. He could make out that मेरी quality is always better than what this person is wearing. So and he said, finally staring at the shoes for a very long time, he said, those are not my boots. ये मेरे boots नहीं हैं. The tone was not one of anger, nor of sorrow, not even of contempt, but there was in it some quiet that froze the blood. वो जो जिस तरीके से मिस्टर गेज़लर ने बोला उसमें ये नहीं था कि ही वॉज एंग्री कि मेरे से शूज़ क्यों नहीं बनवाए, और ही वॉज सैड, अरे मेरे से क्यों नहीं बनवाए. नॉट इवन ऑफ काइंड ऑफ अनोइंग कि आई एम मेकिंग योर शूज़ फॉर लॉन्ग टाइम एंड आपने बाहर से ले लिया, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट ही द टोन वॉज समथिंग which actually froze the blood, means which actually made the writer think that I did a mistake by getting my shoes done or buying my shoes from somewhere outside and not from Mr. Gessler's shop. He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. और मिस्टर गेज़लर ने क्या किया, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अ परफेक्ट शू मेकर कैन डू दैट. उन्होंने अपना हाथ जो नीचे प्रेस किया एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस, राइटर के जो लेफ़्ट बूट था उस पर वहाँ पर प्रेस किया, और प्रेस करके जो जहाँ प्रेस किया वहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं था राइटर वेयरिंग दैट शू, एंड ही सेड, इट हर्ट्स यू देयर, दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. देखने से पता चल गया कि शू कहाँ पर बाइट कर रहा है या कहाँ पर अनकंफर्टेबल है. वहाँ पे प्रेस किया और कहा कि यहाँ पर तुम्हें इसको दर्द होता होगा, तुम्हें चुभता होगा. सो these big firms, these big shoe making companies, they don't have any self respect. They don't make good products. They just make products for the heck of profit and money. सिर्फ वो पैसा कमाना चाहते हैं. They don't have intention to serve the customer in such a way that वो उनकी चीज़ ज़्यादा चले. उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है. They get it all. They get it by he said, they get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this presently. I have no work. Every year it gets less. Now, उनका जो पेन था एज अ शू मेकर, वो उनका पेन जो था वो बाहर निकल आया उनके वर्ड्स में कि वो हमसे हमारा काम ले लेते हैं. जो बड़े शू मेकर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और हमारा जो लव है टूवर्ड्स आवर वर्क, हमारा डेडिकेशन हमारे स्किल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये लोग एड्स करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं. और जब आप पब्लिसिटी देखते हैं, न्यूज़पेपर में कोई चीज़ का ऐड पढ़ते हैं, आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट. सो वी डोंट गेट दैट काइंड ऑफ कस्टमर्स जो कि बड़े बड़े शॉपकीपर्स को मिलते हैं. इस वजह से हम सफ़र करते हैं. इस वक्त हमारे पास वी डोंट हैव मच वर्क टू फीड आवर सेल्व्स, and every year after year, we are losing our work because of these big companies. Excuse me. And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. और तब राइटर ने रियलाइज़ किया कि कितना स्ट्रगल होता है एक बिज़नेस में, एक काम में. इफ़ यू आर अ स्किलफुल वर्कर,
तो कितना मुश्किल है अपनी चीज़ को सही तरीके से अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना जब आसपास इतना severe competition हो. And the writer noticed that his beard, which was red by nature, he had reddish hair, had started having some gray hair. That is the symptom of struggle, symptom of pain, symptom of bitterness, symptom of tiredness. As best I could, I explained the circumstances of of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. तो राइटर ने कोशिश किया कि एक तरीके से वो सफाई दे के या मैंने बूट्स ले लिए एंड ऐसा सर्कमस्टेंस था मेरे को लेने पड़े. बट उस जो मिस्टर गेज़लर थे, जो शू मेकर थे हमारे, वो इतना ज़्यादा उनके फेस पे एक पेन का, एक दुख का एक्सप्रेशन था कि जो हमारे राइटर थे, जो ऑलरेडी सॉफ्ट हार्टेड थे, उन्होंने कुछ मिनटों में ही बहुत सारे शूज़ का ऑर्डर दे दिया. दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years. जो इतने सारे शूज़ बनवा लिए और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी के, डेफिनेटली वो टूटे नहीं, बहुत टाइम तक चलते रहे. और राइटर मिस्टर गेज़लर की शॉप में आने वाले 2 साल तक नहीं गया. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. मैं कुछ टाइम के बाद, कुछ कई महीनों के बाद वापस उनके शॉप पे गया तो इस बार मुझे ऐसा लगा कि उनके एल्डर ब्रदर थे और वो खुद नहीं थे और उन्होंने एक लेदर का पीस जो है वो अपने हाथ में लिया हुआ था. Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I'm pretty well. Now, pretty here means pretty. I'm pretty well, he said slowly. But my elder brother is dead. Now, he was the younger one, and he informed that I'm okay, but my elder brother is dead. He is no more. That was very sad for the writer. And I saw that that it was indeed himself, but how aged and wan. He was so aged, so tired. और उनको देखने से ही लग रहा था कि कितना एक इंसान ड्रेन्ड हो जाता है. ओल्ड एज इज़ अनदर थिंग. आप ओल्ड हो जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप ड्रेन फील करो. कई लोग बहुत ब्राइट और ग्रेसफुल और चीयरफुल लगते हैं, बट यहाँ पर वो बहुत एजेड और ड्रेन्ड और टायर्ड, एग्जॉस्टेड लग रहे थे. एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी. और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक भाई ने दूसरे भाई के बारे में ज़्यादा कुछ बात की हो, लेकिन उन्होंने इस बार मेंशन किया और मेंशन बहुत सैड न्यूज़ की दैट ही इज़ नो मोर. सो आई फेल्ट दैट फीलिंग ऑफ शॉक. आई फेल्ट इट्स रियली सैड एंड ही जस्ट सेड आई एम सॉरी. Yes, he answered. He was a good man. He made a good boot. But he is dead. And he touched the top of his head where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. Now, when he said, I'm sorry, so the brother started talking about his another brother, the deceased brother, the one who is no more, and said, yes, he was a very good man and used to make wonderful boots. बहुत अच्छे boots बनाता था, but he's no more, he's dead. And then he touched the top of his head where there were so thin hair, बाल यहाँ से उड़ चुके थे, जा चुके थे. And he touched here and the hair was so thin as if he was indicating that, the cause of the death of his brother was all the tension and stress जिसकी वजह से वो बाल उसके यहाँ से चले गए. ऐसा होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं. इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, यू मस्ट नॉट हैव एक्सपीरियंस, बट आस्क योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स कि जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे बाल जो है वो थिन होने लग जाते हैं. बालों के ऊपर, स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होने लग जाता है, तो हमारे बाल जो होते हैं वो थिन होने लग जाते हैं, गिरते हैं, हेयर फॉल होता है. तो उसने ऐसे करके टच किया एज इफ ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू से दैट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस बाल जा रहे थे और उस वजह से उसकी डेथ हो गई. द स्ट्रेस और द टेंशन वॉज द कॉज, द सैडनेस वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ. एंड सडनली ही आस्क्ड, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? क्या आपको कोई बूट्स चाहिए? एंड ही वॉज होल्डिंग द लेदर इन हिज हैंड एंड सेड, इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, डू यू वॉन्ट इट? I ordered several pairs. Now, our writer, he again ordered several pairs.
आउट ऑफ जस्ट द नीड, उसको ज़रूरत भी थी, एंड आउट ऑफ द गिल्ट, गिल्ट के मैंने शूज़ नहीं लिए, आउट ऑफ सैडनेस एंड sorrow that the brother was dead. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. I went abroad. So the writer ordered several pairs, and they took a little long to come, the order to be fulfilled. But जब वो आए तो वो इतने अच्छी क्वालिटी के थे कि वो जल्दी से ख़राब नहीं होते थे. और उसके बाद राइटर बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए. अब्रॉड जाने के बाद काफ़ी टाइम तक वो वापस ही नहीं आया. It was over a year again before I was again in London, and the first shop I went to was my old friends. और एक साल के बाद राइटर वापस आया. वापस आने के बाद सबसे पहली शॉप जो उसने विज़िट की, दैट वाज द राइटर द मिस्टर गेज़लर्स, जो जिसको उसने ओल्ड फ्रेंड, यहाँ पर ओल्ड फ्रेंड मीन्स मिस्टर गेज़लर, वहाँ पर गया. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. जिस आदमी को मैं छोड़ के गया था वो 60 ईयर्स का था, लेकिन एक साल में ही टर्न 75. नाउ यू विल से हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल. एक साल में उसकी सफरिंग, उसकी एग्जॉशन, उसकी टायर्डनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो अपनी एज से 15 ईयर्स एल्डर लगने लग गया. क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? ऐसा बिल्कुल होता है. व्हेन यू फेस समथिंग विच इज़ टू सैड, यू आर नॉट एबल टू बेयर इट, आप इतनी टेंशन ले लेते हो, आप इतना स्ट्रेस ले लेते हो, तो आपकी एज ऑटोमेटिकली जितनी होती है उससे कहीं कहीं ज़्यादा लगने लग जाती है. लोग बूढ़ा लगने लग जाते हैं. पीपल स्टार्ट फीलिंग ओल्ड, सो दे स्टार्ट अपीयरिंग ओल्ड एज वेल. So he said this is a very sad thing that he left a person of 60, but he met a man of 75, pinched and worn. Pinched and worn means थका हुआ, बिल्कुल drained, who genuinely this time did not at first know me. उसने उसको पहचाना भी नहीं. वो इतना ज़्यादा ओल्ड फील कर रहा था, इतना स्ट्रेस्ड आउट था कि उसने उस अपने कस्टमर को, जो उसका इतना बिलवेड कस्टमर था, इतना पुराना कस्टमर था, उसने उसको पहचाना तक नहीं. Do you want any boots? He said, I can make them quickly. It is a slack time. उसने कहा कि कोई बूट्स आपको चाहिए, मुझे ऑर्डर दो, मैं एकदम से उनको बना दूंगा. इट्स अ स्लैक टाइम मीन्स हार्डली एनी बिजनेस वॉज कमिंग. सो वो एकदम से बना देगा क्योंकि उसके पास टाइम ही टाइम है बनाने के लिए. आई आंसर्ड, प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड, एवरी काइंड. उस जो राइटर था उसको ही फेल्ट सो पिटीफुल अबाउट दैट पर्सन. उसको इतना दया आ गई. उसने कहा यस, मुझे बहुत सारे टाइप के बूट्स चाहिए, हर तरीके के बूट्स चाहिए. आई हैड गिवन दोज बूट्स अप when one evening they came, and then one by one I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. और finally एक शाम को वो बूट्स मेरे पास डिलीवर हो गए, मेरे पास आ गए, मैंने ले लिए. एक के बाद एक मैंने सारे बूट्स ट्राई किए, in shape, in fit, in size, in color, in making, pattern, everything, the quality सबसे बेस्ट थी. अब तक जितने शूज़ उन्होंने बनाए थे उसमें ये सबसे बेस्ट थे मेरे लिए. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. और उसने फटाफट एक चेक बनाया, बैंक का चेक बनाया द पेमेंट के लिए, और वो चेक जो था वो पोस्ट कर दिया टू द एड्रेस of that shoemaker, the shop of Mr. Gessler. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. और मैंने सोचा कि मैं उनको बताऊं कि वाह आपने इतना अच्छा काम किया, and the shoes are commendably good, such a good quality. उसने सोचा कि मैं उनको boost up करता हूँ, and as it is, he would be telling the truth. The shoes were really nice. But when I came to where his shop had been, his name was gone. और जब वहाँ पे पहुँचा उसने देखा कि बोर्ड के ऊपर वो मिस्टर गेज़लर या गेज़लर ब्रदर्स का जो नाम होता है वो नहीं था. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब. वो अंदर गया, बट ही वॉज सो डिस्टर्ब. जो चीज़ आप बचपन से, अगर आप एक शॉप देख रहे हैं, आप अपने शहर से बाहर चले जाते हैं, वापस आते हैं, तो देखते हैं कि वो है ही नहीं वहाँ पर और कुछ और है, एंड यू एक्चुअली फील सो डिस्टर्ब. द राइटर ऑल्सो फेल्ट द सेम.
In the shop, there was a young man with an English face. Now, Mr. Gessler, as we know, Gessler brothers, they were German, but this man who was sitting in the same shop was an Englishman. Mr. Gessler in, I asked that, where is Mr. Gessler? कहाँ है वो? So, uh, no, sir, he said. No, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. उसने कहा कि नहीं, मिस्टर गेज़लर तो नहीं है, but yes, हम आपका कोई भी काम, कोई भी सर्विस जो है वो हम करेंगे, बिकॉज ये शॉप अब हमने ले लिया है. वी हैव बॉट द शॉप, हमने टेक ओवर कर लिया है या ख़रीद लिया है, वट एवर. यस आई सेड, बट मिस्टर गेज़लर. ना हमारे जो राइटर हैं वो क्यूरियस है मिस्टर गेज़लर के लिए, क्योंकि इतने सालों में उनका एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग हो गया मिस्टर गेज़लर से. आना जाना, उनसे शूज़ पहनाना, उनके एक एक एक्सप्रेशन को नोट करना. एंड मोर ओवर द परफेक्ट शूज़ विच ही ऑलवेज गॉट फ्रॉम मिस्टर गेज़लर वर स्पेशल अट्रैक्शन टू हिम. एंड ही वॉज जस्ट कंटिन्यूसली आस्किंग अबाउट मिस्टर गेज़लर. Oh, he answered, dead. What did he answer? No, he is no more. He is dead. Dead? But I only received these boots from him last Wednesday. That was last Wednesday week. मैं पिछले हफ्ते तो मैं लेकर गया हूँ Wednesday को. He was alive. He was fine. Ah, he said. Poor old man starved himself. वो भूख की वजह से मर गए, गरीबी की वजह से मर गए. Slow starvation, you see, the doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody. And there he'd sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? उसने क्या बोला? Whatever he said was sad but real, that he would keep his shop open all the time. He would work day and night 24/7 to make the shoes, वो shoes जो कोई भी नहीं खरीद रहा था. People had better options. People used to get shoes of better colors and they would used to get shoes very quickly. आप अभी ऑर्डर दो तो नेक्स्ट मोमेंट आपको शू मिल जाए, ऐसे शूज़. और उनके शूज़ बनने में तो हमें पता है कितना टाइम लगता था. एंड व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर ही यूज्ड टू टेक अ लॉन्ग टाइम. और लोगों के पास टाइम है? लोगों के पास टाइम ही नहीं. पीपल डोंट हैव टाइम, सो पीपल वोंट वेट. He lost everybody, but he would sit there and go on and on and on and making shoes with a lot of trouble. And yes, this man, this Englishman confessed. उसने कहा कि उनसे better shoes पूरे लंदन में कोई नहीं बना सकता. But ये क्या मतलब है कि आप अपना ध्यान नहीं रखो, ये नहीं सोचो कि चीज़ बिक रही है कि नहीं बिक रही. खुद को गरीबी में डालो, भूख में डालो और शूज़ बनाते रहो. It is not a practical idea. That's what he said. It is sad, but it is also true that he was such a skillful person that he did not get his due. उसको जितना मिलना चाहिए था बिजनेस, जितना वो रिच होना चाहिए था अपने स्किल के हिसाब से, वो बिल्कुल नहीं मिला, बिल्कुल नहीं हुआ. एंड दैट इज़ द सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट स्टार्वेशन, द राइटर सेड विद अ साई, यस, उसको यही मिलना चाहिए था अपने आइडिया से. भूखमरी, सैडनेस, डेथ. That may be a bit flowery as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boots day and night to the very last, you see. उसने कहा कि जिस तरीके से वो अपना काम कर रहा था, दिन रात सिर्फ बूट्स के ऊपर ही काम करता जा रहा था और कुछ नहीं सोच रहा था अपने लाइफ के बारे में. आई यूज टू वॉच हिम, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस. All went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. उसने कहा मैंने उसको देखा, दिन रात वो काम करता रहता था. खाने तक का उसके पास टाइम नहीं था. घर में एक पैसा नहीं था, बट वो फिनेटिकली बिल्कुल पागलपन की हद तक वो बूट्स बनाता रहता था. और जो पैसा थोड़ा बहुत आता था वो उससे लेदर खरीद लेता था या अपने घर का रेंट पे कर देता था. बट कब तक वो ऐसा चलता? फाइनली उसके घर में कुछ भी नहीं रहा, खाने को कुछ नहीं रहा. फायर गो आउट मीन्स देयर वॉज नो मनी टू टेक केयर ऑफ हिज डे टू डे लाइफ.
ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स. वो अलग तरीके का इंसान ज़रूर था, लेकिन हाँ, yes, that's the point. He was the most skillful shoemaker. Yes, I said he made good boots. With a lot of sadness in his heart, our writer said, yes, he made good boots. मतलब उससे अच्छे boots कोई नहीं बना सकता था. It's written by John Galsworthy. It's a simplified and abridged version, and hope you like the narration and the explanation. You can just tell me in the comment box if you need any kind of improvement, if you expect something else. Soon I'll be explaining the question answers and how to go about them, and many more things are there in this chapter, like the words meanings and all, and I'll discuss and reply to your questions as much as possible in my next YouTube video. Till then, take care. Bye bye.